This topic is written by the Dr. Ramdari Singh Dinkarji. Shortly, we are say person called as Dinkar. He was born in 1908 and he was dead in 1976. His life period is 66 years only. In this life period, he was doing the services in Hindi literature in different ways. So, this topic is divided into 5 parts. Now we are discussing the part number 5th one. In previous classes we have discussed about 4 parts in this topic. The first one is brief biography of the poet. Next, another one, part number 2nd, that what is the ambition of the poetry. Here, how to he imagine that society, and how to explain the topic of Danbal poetry. And then part number 3rd and 4th, here 3rd part is the first 6 lines, here how to explaining the poetry and what message is given in that poetry, poetical lines, the stanzas. Okay, in that part number 4, another stanza, about 6 lines, next, here explaining even the moral that how to help the society as a donation, as a help, what is the responsibility of a human being, here, etc. Now we are discussing the last stanza of the poetry, the Danbal, which is written by Dr. Ramdari Singh Dinkarji. Right. Here, the poet has taken one of the example of the river. The river, here collect the water and here floating the same direction. And why the ambition of the aim of the river, we are not have the selfish, we are not gathering that water as a certain place, but here help to others, the view of the helping others, here float the water in a place to another place. And next, the water evaporated from the river, and then next make the form of the clouds. That cloudy, there's a very coolness of the cloudy, and the next cloudy season, and next they make a form of the as the rain. Again the water can be in a form of gathered in the river. That means the human being also here collect gather the property, the money, assets. They not they keep himself. They can be used extraordinary, so you can be help to others with the occasion and the help to others as a donation, as a help to the poor people. Okay. Then why should we help? Means that helpless is as a good good performance in the human life, and that he can be have the sacrificing the property, he can feel happiness in his life. After the death, everybody should left this all the assets of the family and the society. The one day every should be died. At the time that a human being is not taken away from that the society to the death place, right? Isn't meaning died that heaven. So okay. So that's why the people should be when they are help to others in his life period. That's
this is the brief explanation. Here poet comparing, here helping as a river, right? What the matter is given here in sentence wise we can see. यहाँ दानबल कविता के अंतर्गत कवि डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर जी, जो हिंदी साहित्य में दिनकर जी के नाम से माने जाते हैं, इस कविता का जो शीर्षक का संख्या नंबर 4 है, ये आधुनिक कविता पाठ से लिया गया है, इसकी संख्या 4। ये वाली जो शीर्षक कविता यानी दानबल, ये प्रथम वर्ष हिंदी स्तर के लिए, ये द्वितीय भाषा हिंदी के लिए यह दिया गया है। इस कविता के अंतर्गत कुल योग ने 5 भाग बताए गए। आज हम इस कविता का अंतिम वाला भाग 5वां भाग के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और इससे पूर्व जो 4 भाग हैं उन भागों के संबंधी जब देखा गया तो पहला भाग जो होता है दिनकर जी का जीवन परिचय के बारे में संक्षिप्त में देखा गया। अब आपका जन्म कब हुआ है, कहाँ हुआ है और किस प्रकार से इन्होंने अपने जीवन के अंतर्गत हिंदी साहित्य की सेवा की है। और इस प्रकार भाग नंबर 2 के अंतर्गत कविता परिचय जो शीर्षक दानबल है, इस कविता का परिचय देखा गया है। इस कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, कवि का उद्देश्य क्या है, यानी इस प्रकार से हमें क्या नीति मिलती है और किस प्रकार से हमें यानी अपने जीवन को निर्माण करना है, ये सभी विषयों का चर्चा भाग नंबर 2 के अंतर्गत दी गई है। और उसके बाद भाग नंबर 3 और 4 में उनके आरंभिक पंक्तियों के बारे में यानी विषयों का विश्लेषण यानी पंक्ति के रूप में किया गया है, जिसमें भाग नंबर 3 में इन्होंने क्या बताया है, दानबल का महत्व बताते हुए हर मनुष्य का दान का देना यानी एक मनुष्य का कर्तव्य है। ये अपना जो होता है यानी जीवन के अंतर्गत त्याग करना, अपने कर्तव्य का यानी क्या होता है, अपने अधिकार का त्याग करना नहीं है, बल्कि अपने मनुष्य दान का देना इस प्रकार से के माना जाता है कि अपने जीवन का कर्तव्य को निर्वहन कर रहा है। इस प्रकार से करने मात्र से यानी व्यक्ति का जीवन सुखी और व्यक्ति का जीवन धन्य माना जाता है और महत्वपूर्ण माना जाता है। और इसके अतिरिक्त जो भी यानी अपनी संपत्ति को बचा रखेगा, वो वाला जो व्यक्ति का जीवन जो होता है नश्वर हो जाता है, यानी इसका जीवन के अंतर्गत वो जीते जी मृत्यु के समान माना जाता है। अंतिम में यानी जो भाग नंबर 4 के अंतर्गत क्या देखा गया है कि मनुष्य के जीवन में दानबल का बड़ा महत्व होता है और ये महत्व की तुलना जो होती है एक वृक्ष से बताई गई। ये वृक्ष जो जिस प्रकार से अपने ऋतु के अंतर्गत फूल फल देता है और इसके बाद वो अपने ऋतु के समापन के संबंधी अपने जीवन के अंतिम में वो फलों को छोड़े जाता है। छोड़ जाने मात्र से क्या होता है, उसको फलों को मनुष्य उसके आशा के अंतर्गत आने रखने मात्र से वो फल जो होते हैं सड़ान के कारण उसके क्या हो जाते हैं, उसके पेड़ शाखों में जाकर वो कीटाणु से वो क्या होता है, शाखाएं के साथ साथ उसके सारे पेड़ को भी वो नष्ट कर देते हैं, वो मृत्यु के शिकार हो जाता है। यदि इस वाले फलों को अपने ठीक समय पर सही भली भांति इसका प्रयोग कर रहे हैं, उसको कट करके और उसको आश्वासन करने मात्र से अन्य दूसरों की सेवा के लिए, माने कहने का उद्देश्य क्या होता है ना, ये करने मात्र से क्या होता है, वो फिर से उस जगह से फूलों को देकर वो स्वस्थ जीवन निर्वाह कर सकता है। इसकी उदाहरण इन्होंने कवि ने क्या बताया, जो मनुष्य अपने जीवन के अंतर्गत क्या होता है, जो दूसरों को परहित के लिए, जैसे वृक्ष ने अपने स्वार्थ के लिए नहीं, दूसरों की यानी भलाई के लिए, स्वास्थ्य के लिए फलों को जैसे दिया है, उसी प्रकार अपने मनुष्य भी अपने जीवन के अंतर्गत अपने धन संपत्ति को अपने स्वार्थ के लिए नहीं, परहित के लिए, दूसरों के लिए, सहायता के लिए हम कार्य करने चाहिए। ऐसे करने मात्र से क्या होता है, उसका जीवन धन्य होगा, है ना। इसके यदि इसके ना करने से, इसे फलों को ना काटने से उसके अंदर
अंदर सड़ान आकर वृक्ष मर जाता है, इसी प्रकार मनुष्य में अगर धन से अपनी संपत्ति से दूसरों को दान ना दिया गया तो जीत जी मृत्यु के समान होता है, व्यर्थ हो जाता है, उसका जीवन नश्वर हो जाता है। और अंतिम में जो पंक्ति में क्या बताया गया कि ये वाला जो मनुष्य का जीवन के अंतर्गत अने जो दान का महत्व को एक अन्य तुलना जैसे नदी के साथ तुलना की गई है। नदी में क्या बताया गया, नदी के अंतर्गत जो पानी होता है वो पानी जो होता है नदी सारे भिन्न भिन्न प्रांतों से इसको इकट्ठा करती है और वो इकट्ठा करके अपने एक जगह निश्चित स्थान में नहीं जमा करती है, बल्कि वो अपने बहाव को दूसरों की प्यासों को बुझाने के लिए, दूसरों की आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए उद्देश्य से अनेक सभी टकराव करते हुए, कटने की सामना करते हुए वो अपने लक्ष्य तक, दूसरों के प्यास को बुझाने तक पहुँच जाती है, फ्लोटिंग हो जाती है। इसी प्रकार अपने यानी जो मनुष्य भी जीवन के अंतर्गत क्या करना चाहिए, अपनी संपत्ति को स्वयं के लिए नहीं, परहित के लिए, दूसरों के भी भलाई के लिए उपयोग प्रयोग में लाना चाहिए। जैसे नदी ने किस प्रकार अपने कर्तव्य को निभाया है यहाँ पे बताया। सरिता देती उन्हें वारी की पाकर उसे सुपुर्तित घन हो। सरिता का माने नदी देती है, क्या देती है, वारी की पाकर माने जल के पाकर, जल को इकट्ठा करने पर क्या उसे सुपुरित घन हो, यानी भरपूर मेघ बादल बन सके। माने उसमें अपने नदी अपने पानी को इकट्ठा करके क्या होता है, उससे उन्हें जलाशय में एवापरेट हुआ वाटर को माने यहाँ पर उसकी भाप को क्या होता है, मेघ बनने के, भरपूर मेघ बनने के योग्य, बरसे मेघ करने के योग्य, बरसे मेघ भरे फिर सरिता। मैंने इस प्रकार से वो एवापरेटेड वाटर फिर अगेन द क्लाउड्स विल बी कूल एंड एज ए come down to that the earth as a rain, and the water, rainy water will be fledged with the river only, again the recircling that। बरसे मेघ जैसे नदी का पानी जलाशय जो होता है बहते हुए अपने पानी का भाप अपने मेघ के रूप में बदल जाता है, वो मेघ फिर से क्या होता है, बरस से मेघ बरसकर वर्षा के रूप में भरे फिर सरिता, फिर से सरिता भर जाती है, नदी भर जाती है। उदित नया जीवन हो, फिर से वो पानी नया सर्कुलेट होता है, नया जीवन निर्माण हो जाता है। माने मनुष्य अपने जीवन के अंतर्गत जो कुछ भलाई करता है, दान पुण्य करने से उसकी भलाई का योग्य होता है। ये भलाई जो होती है उसके मरने के बाद फिर से रिसाइक्लेट जैसा वाटर हुआ है, फिर इसका जीवन मृत्यु के बाद भी वो हो जाता है, नया जीवन के अंदर वो भला बन जाता है, भलाई का योग्य बन जाता है। आत्मदान के साथ जगती जीवन का माने आत्मदान का मतलब अपने सैक्रिफाइसिंग सैक्रिफाइसिंग के साथ माने जगत के माने त्याग के आत्म त्याग को माने अपने आप को त्याग करने के योग्य, त्याग योग्य, त्याग के साथ जगत जीवन का, जगत माने संसार, संसार जीवन का माने यहाँ पर जीवन के अंतर्गत मनुष्य जीव अपने समाज में जो जीवन जीवता है, जीवन का रुझानता जोड़ता है, सीधा संबंध को जोड़ता है। क्या कहा गया, जो व्यक्ति अपने जीवन का सीधा नाता संबंध कौन जोड़ सकता है, जिसने अपने आप को त्याग करता है, सैक्रिफाई करता है। दोज आर सैक्रिफाइसिंग they can be combined and fledged with the life. Those you are not having the selfishness, they can spend the life, you are not thinking about himself but other people too. Mean how to develop myself is not good, here how to develop the family or that village or the town or the state or like this okay society। आत्मदान के साथ जगत जीवन का, जगत माने संसार के जीवन का जुड़ना, उन्हें रुद्रराज का माने सीधा संबंध इसके साथ जुड़ने के योग होता है। जो व्यक्ति
अपना जीवन को आत्मदान के साथ जोड़ता है, वो सीधा कितना अपने समाज के साथ अपने नाते को, संबंध को जोड़ देता है. Those are fulfill the responsibility of the society. He can be as a the real human being. Those are people, those human being related their life with the society, and the person is called as a successful person. जो देता जितना बदले में उतना ही पाता है. Those who are give respect and take respect. If you give the help, if you help to others, then you can receive the response the same way. मीन्स जो देता ना था, जिसने यहाँ पे सरिता नदी का पानी जितना भाप के तौर में गया है, as evaporated, again that water will came to the river as a refreshed, really, what one, as a recircling that. Okay, जितना जो देता जितना बदले में इतना जितना सा दिया जाता है, बदले में उतना ही पाता है. क्या बताया गया? गिव रेस्पेक्ट एंड टेक रेस्पेक्ट. जितना आपने दिया है उतना आपको दे हाथ तो ले हाथ होता है. इफ यू गिव दैट समथिंग तो यू कैन गेट दैट समथिंग. इफ यू नॉट गिव टू अदर्स, हेल्प टू अदर्स, नोबडी कैन हेल्प यू. मीन फर्स्ट ऑफ ऑल you decided to that you can cooperate to others, you can that the other people will be respected and cooperate with you. दान जगत का प्रकृति धर्म है. क्या बताया? दान का देना मीन्स डोनेशन. डोनेशन आर से एज ए हेल्प, HELP, हेल्प, एज ए हेल्प. ने जगत का, सोसाइटी का प्राकृतिक धर्म है, इज ए नेचुरल रेस्पॉन्सिबिलिटी. Yes, it means the donation or helping is the human's natural responsibility. मनुष्य व्यर्थ ही डरता है. The most of the people, that human being will be shy or tempted for help to others. Mean is not good. This is not is our responsibility. You don't shy to help or donate other people. And you should, this the donation or helping is our human beings natural responsibility. And so एक रोज तो हमें स्वयं सबका सब कुछ देना पड़ता है. Why? Because it should be die one day, and at the time nobody can be taken away with the dead body. So here everybody should can be die one day. Mean एक रोज तो हमें स्वयं अने सब कुछ छोड़ देते हैं. In the life period you can be gathered and you are collecting the money, assets, the family. We should not think about or worry about the others. But anybody can be, everybody should be die in one day. At the time nobody can be taken away. That means you should, if you are alive in life period, if you are sacrificing your assets, your property, yourself for others, as a family, as a society, as a neighbor, so everybody can be helps you, right? After the death, your life will be sacrificing, your life member will be respected in the society by with your help only. And एक रोज तो हमें स्वयं सब कुछ देना पड़ता है. ये left the everything will be left here only. The one when that day you, which day you are die, means nobody can be taken away with that dead body. ओके, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं. Which thing you are taken as a blesses, as a coordination with you. Mean बचते वही, mean that things, those things you are, which you are help sacrificing, help as a donation, help as a physically, mentally, spiritually helps. This will be as a
good things as the blessings of the the pleasure, the people or the society. The people, those are telling, are giving that words as a blessings of the God with you. Okay, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं. Those things are living here, taken away with your assets as assets, which you are donated are helping the persons, those are required in the life period. ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको वे देकर भी मरते हैं. ऋतु का as a seasonally mean which day you are alive and which after the death what position, what happens, and you are those are not having the knowledge about the after the death, so they can be live here when the person is called as a dead only, means the जीते जीव मृत्यु के समान होते हैं. जैसे बताया ऋतु का ज्ञान नहीं जिनको, mean those are not having the knowledge of the day after the death, वे देकर भी मरते हैं, माने those are mean they donated but they are not fully satisfied to others, so as a you are not equivalent of your other people's blesses. Okay, means you are given the preference, you are given the message, what one as in life period we should be, every human being and every person should be give the help as a donation in different ways in his life period and in the society, and cooperate cooperate the society with your donations. The poor people, they are as per their sacrificing the life. तो यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि जीवन के अंतर्गत मनुष्य जैसे नदी सरिता ने अपने पानी के बहाव को बढ़ाते हुए दूसरों की प्यास बुझाती है, अपने आवश्यकता को दूर करने के लिए, मैंने लोगों की आवश्यकता दूर करने के लिए अनेक कार्य करती हैं, उसी प्रकार मनुष्य भी अपने जीवन के साथ साथ में निस्वार्थ को छोड़कर निस्वार्थ से लोगों की सहायता के लिए कार्य करना चाहिए. और जैसे सरिता नदी ने अपनी नदी का पानी क्या है सूर्य के किरणों से भाप के रूप में चला जाता है, उसे और फिर से वो बादलों का मेघों का बन जाता है और उसके बदल के मेघ जब बरसने से बारिश के तौर पर फिर से वो नदी में जुड़ जाता है. मनुष्य के जीवन के अंतर्गत किया हुआ दान पुण्य उसके मरने के बाद फिर से उसको अपनाने के योग्य बन जाता है. मीन इस प्रकार यहाँ पर जीवन के अंतर्गत होने वाली प्रतिभा के बारे में बताया गया, महत्व के बारे में बताया. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द लाइफ पीरियड आफ्टर द डेथ, दोज पीपल आर सैक्रिफाइसिंग देयर लाइफ आर एज ए मीन हेल्प टू द सोसाइटी विथ योर डोनेशंस. आफ्टर द डेथ दे कैन बी having as a blessings of the God, and every sacrificing as a blessings of God only. So you should be in a coordinate with your society, and so thank you.